position of women is not so good. Yes, it has, in fact, it is moving towards a better place, but again then, we have to cross so many miles to achieve that social position which she deserves as an equal, as a human being first and then as a woman. یعنی آپ کے secondly. کہنے کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی طرح خواتین کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. آپ کے کہنے کا یہی مقصد ہے؟ پورا یہ سچ نہیں ہوگا, ٹریٹ کیا جاتا ہے, جی. لیکن بہت ساری خامیاں بھی ابھی ہیں. سوشل سٹرکچرز ہمیں سوشل یونٹس اس طرح سے ہیں کہ ہم نے ایک سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے, ہم انسانوں نے اس سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے, ہم نے ان میں ڈیفائن کیا ہے رول. آپ کا کیا ہے ایز میل, ایز اے گرل آپ کا رول کیا رہے گا, ایز بوائے آپ کا رول کیا ہے, آپ کی پریورٹیز کیا ہے, ایز فیمیل آپ کی پریورٹیز کیا ہے. دوز یونٹس وی ہیو کریٹڈ, اور ہم جب ان یونٹس کی, اس سوشل اسٹرکچر کی ایک انالیسس کرتے ہیں, اس میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی پرسنالٹی ان رولز میں ڈوب گئی ہے. جی. she is really on the productive side, جی. but from data it sees that she is only in receptive mode. ایسا ہی لگتا ہے. بالکل بالکل. she plays a very positive role in her life, but that is underestimated, not properly identified, not properly recognized. These things ہمارے ساتھ ابھی افروزہ جی بھی ہیں, تو افروزہ جی سے بات کرتے ہیں. آپ ایک سائیکو سوشل کاؤنسلر ہے سکی ون اسٹاپ گاندربل میں. تو کیا رول رہتا ہے آپ کا ایز اے سائیکو سوشل کاؤنسلر؟ پہلے تو ناظرین کو میری طرف سے پیار بھرا سلام, اور آپ کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں پہ آنے کے لیے. تو رہی بات اب سوال کی کہ ایز اے رول سائیکو سوشل کاؤنسلر, میں مانتی ہوں کہ سائیکو سوشل کاؤنسلر کا بہت ہی پائیوٹل رول رہتا ہے او ایس سیز میں, کیونکہ جو بھی خواتین وہاں پہ آتی ہے, وہاں پہ تو ایسی ہی نہیں آتی ہے نا عورتیں, ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. دے آر فل آف اسٹریس, دے آر فل آف انگزائٹی, دے آر فل آف وریز. تو جب وہ آتی ہیں اپروچ کرتی ہیں او ایس سی, تو پہلے رول رہتا ہے سائیکو سوشل کاؤنسلر کا یہی کہ ان کو کمفرٹ کرانا. وہ ان کا ہمیشہ سے یہی رہتا ہے کہ میرا کوئی سنے, میں بولوں اور میرا کوئی سنے. تو کاؤنسلر کا یہی رول رہتا ہے کہ ان کا سنے, وہ کمفرٹ ہو جاتی ہے, ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہے یہاں پہ جو مجھے اس پرابلم کو ایلیویٹ کرے, اس پرابلم کو لے کے مجھے ہیلپ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم اس کو جب سن کے ان کو پھر وہ ریپو بلڈ جب ہو جاتا ہے, تو ان کو ہم وہاں پہ کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں, ان کو ہم نیویگیٹ کرتے ہیں ویئر یو ہیو ٹو گو. یا ایٹ ٹائمز کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ عورتیں ٹرائبل ایشوز, پیٹی ایشوز لے کے آتی ہے ہمارے آفس پہ, جو کہ وہ ایشوز ان کو سمجھانا کہ یہ جو اتنا مسئلہ ہے, آپ کو اس میں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کورٹ یا آپ کو پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو وی میک دم انڈرسٹینڈ وہاں پہ کہ وی آر جسٹ ریفلیکٹنگ دم دیئر پرابلمس, کہ ہائٹ کیا ہے, یہ تو اس مسئلے سے بھی حل ہو سکتی ہے, یہاں پہ آپ کو بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اس ذمے میں مانتی ہوں کہ سائیکو سوشل کاؤنسلر کا بہت ہی امپورٹنٹ رول رہتا ہے. پلس مطلب ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی عورت آتی ہے, گریویڈ ہوتی ہے, فل آف اسٹریس ہوتی ہے, ہم سے بات کر کے وہ تھوڑا ریلیو محسوس کرتی ہے وہاں پہ کہ نہیں برڈن کم ہوا. اینڈ وی آر مطلب نا لکی انف کی, پھر میں نے دیکھا ہے کہ آئی ہیو سین کہ آتے ہیں جو لیڈیز, تو ایٹ دا اینڈ وہ ہیپی نکل جاتے ہیں, اور اتنا ان کا وہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میم آپ نے مجھے یہ تھینک یو وغیرہ وہ یہ. تو میں بھی پھر خوشی محسوس کرتی ہوں وہاں پہ کہ دیکھو کچھ نہ کچھ ہے اس کاؤنسلنگ کے تھرو, جو برڈن تھا وہ کم ہو گیا. تو میں مانتی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی سینٹرل, بہت ہی پائیوٹل رول رہتا ہے او ایس سیز پہ سائیکو سوشل کاؤنسلر. تو جو خواتین ابھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی, ان کے لیے کیسے آپ سمجھائیں گے ان کو کہ کیا کرنا چاہیے اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے گھریلو سطح پر, سماجی سطح پر, تو کیا کرنا چاہیے ان کو, کیسے آنا چاہیے آپ کے سینٹر پہ, ان کو تھوڑی سی گائیڈنس دے دیجیے. تو جو بھی عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹول فری نمبر ہے 181, وہ اس پہ کال کر سکتے ہیں, یا ہم نے پرسنل 181 جی 181 ہے, تو اس پہ وہ وومن ہیلپ لائن ہے, اس پہ کال کر کے وہ. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی نمبر سے ہم تک بات پہنچے گی, اف شی
नीड इज रेस्क्यू एंड रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रेस्क्यू एंड रिस्पॉन्स. बस हमें पता चलना चाहिए, इधर दे कैन कॉल ऑन द 181 और वी आर हैविंग आवर ओन ऑफिस नंबर्स. मेरा नंबर वो ले सकती है, दे कैन कॉल अस, तो इमीडिएटली हम वहां पे पहुंच सकते हैं, वो कहाँ पे भी हो. यानी आपके कहने का ये मतलब है कि आजकल सरकारी सतह पर हर डिस्ट्रिक्ट में सखी वन स्टॉप सेंटर रखा गया है. आपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में वो जा सकती है. हर एक से, हाँ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है ये वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर. दे कैन अप्रोच देयर. डॉक्टर अनीता, व्हाई वुमेन्स राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस? क्यों ऐसा? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछा कि क्या ज़रूरत है हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे एक विमेन के राइट हुकूक को बचा सकें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो हमेशा डिसएडवांटेजेड पोजीशन पे रही हैं. उसकी, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्म्स पे नहीं हुई है. जो एसेंशियल्स ऑफ लाइफ है वो वहाँ रिप्रेजेंट नहीं करती है. और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हम बात करें, वो एक ग्रैंड नॉर्म है, एक बेसिक सोर्स है, एक डिवाइन लॉ है, एक डायनामिक लॉ है. और उसमें औरतों के हुकूक का इजहार करना स्पेसिफिकली भी है, जनरली भी है, और जो है इंडिविजुअली भी है. We have certain specific provisions in Constitution which guarantee them the basic rights, and even we have certain provisions which empower the states, the governments, the legislatures to make special laws for women on the basis that she has been discriminated, and history stands witness to this fact. Research stands witness to this fact that her rights need to be protected on the constitutional basis, so that special things will emerge, because being the fundamental law of the land, she is reflected there in the preamble, in the fundamental rights. क्योंकि वो हमारे fundamental rights. Exactly, we have fundamental rights for all, but special mention has been made related to specific and special laws for women. स्टेट कैन में खुसूसन जो खवातीन एग्जैक्टली जैसे स्कीम्स आती हैं, सारी चीजें आती हैं, इनका जो सोर्स है, इनका जो फ्लो है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही. और बहुत सारे कानून, स्पेसिफिक कानून आए हैं स्पेसिफिकली विमेन के लिए. उनकी भी वैलिडिटी हम डिराइव करते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें गारंटी देता है कि आप जी इनके लिए स्पेशल लॉज ले आओ. अदरवाइज इट वुड सीम, व्हेन वी सी इट ग्रामेटिकली, it would seem a discrimination against men. Right, when we are making special provisions, giving them special schemes, giving them special grants, giving them all types of benefits which otherwise she deserves, because she has been denied from the past. And history, as I said, history is the witness that she has been denied with all these just benefits which otherwise she was deserving as a human being. That's why लेकिन पूरी तरह से नहीं दिए जाते नहीं है, implement उस तरह से नहीं हो रहे हैं. But yes, now we can say the position of women, it is growing. It is growing in a positive sense. And governments, other institutions of our country, they are doing in fact an excellent job towards identifying their role in the nation development building. Very nice. And therefore different and vibrant schemes have been in operation from past years. Yes, and laws भी इनके साथ, और जो schemes वगैरह हम सब जानते हैं, और उनको aware करना related to their rights. That is why she was underrepresented and at a disadvantaged position. जो constitutional makers थे, drafters थे, जिन्होंने constitution को बनाया, उन्होंने research किया, और research के बाद एक तो general provisions जो हर किसी को apply होते हैं, उनकी protection women's को है, specifically empower किए गए हैं legislature, states to come up with special laws in order to protect what we call the dignified life of this women. आपने बहुत खूब कहा. इसी बात पे मुझे ये याद आया कि इनके सेंटर पे जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर होता है अफरोजा जी, वहाँ पर जो खवातीन होती हैं, गमजदा होती हैं, कसमपुरसी की हालत में होती हैं, तो आप देखती हैं किन किन हालात से आज की औरत, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किन हालात से आज की औरत गुजर रही है, क्योंकि अब प्रेजेंट डेट में वहाँ काउंसलिंग एज अ काउंसलर काम करती है, किन मसाइल से जूझ रही है आज की खवातीन? हाँ, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. अगर मैं स्पेसिफिकली देखूंगी अपने सेंटर की बात, वहाँ पे जो मोस्टली हमें औरतें आती हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस.
this is the grave issue I can see in the society. Yes. हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस में अब उसमें फिजिकल अब्यूज भी आ जाता है, उसमें अब इमोशनल अब्यूज भी आ जाता है, इमोशनल वायलेंस आ जाता है, उसमें अब इकोनॉमिक वायलेंस आ जाता है, उसमें जैसे कि मैम ने अभी बोला प्रॉपर्टी अब्यूज होता है औरतों के साथ, जो कि पहले कभी अब तो आ रही हैं औरतें ढूंढ रही हैं अपना हक है, उनको तो मिलेगा, तो ये ज़्यादा ग्रेव इश्यूज हैं वहाँ पे. या अब इसके ब्रॉडर सेंस में अगर मैं देखूंगी तो जैसे मैडम ने भी बोला अंडर रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप रोल्स, डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशनली बहुत सारी रीजन्स में अभी भी है, मतलब मेल जो पैट्रियार्की सोसाइटी है ऐसी या घर है जब मेल डोमिनेंस, वहाँ पे मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसको प्रायोरिटी, अच्छा स्कूल, अच्छे सब कुछ, तो यहाँ ये चीजें हैं. डू यू थिंक दैट कॉजेस डोमेस्टिक वायलेंस, उस वजह से डोमेस्टिक आई थिंक देखो हाँ, अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक औरत के साथ होता है इसके पीछे भी रीजंस हैं जो मैंने पर्सनली एसेस किया है, वो ये है कि आई थिंक इट इज जो डोमेस्टिक वायलेंस मोस्टली होता है जो आजकल अनएम्प्लॉयमेंट है. अच्छा. सेकंड थिंग इज कि जो ये ड्रग एडिक्शन के शिकार हैं बच्चे, उसकी वजह से भी नहीं मिल रहा है, हस्बैंड हो भाई हो, मैं नहीं ये करूंगी कि स्पेसिफिक कोई घर है ना, ये औरत का मायका भी हो सकता है, इट मे बी इट शुड बी इट्स वर्क प्लेस, हाँ इट इज द जनरल इश्यू, ऐसा नहीं तो हस्बैंड भी, भाई भी, बाप भी, ये लड़का भी हो सकता है बाहर कोई, है ना, तो ये चीजें मोस्टली द ड्रग एडिक्शन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ड्रग एडिक्शन जो है इन मर्दों के साथ आई कैन से कि वो इफेक्ट करता है फिर किस तरह से एक औरत को फिजिकल अब्यूज को लेके, वहां पे पी रहा है, घर आके पिटाई अब किसको, औरत को पड़ती है. या दूसरा मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, बेरोजगारी जो है उसके भी क्या रिपरकशंस रहते हैं. और फाइनली मैंने देखा है औरत पे हंग तो मंगाई विथ में चू अब और तो फिजिकल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज ये है कि बहुत सारे ऐसे ताने होते हैं, बहुत सारे क्योंकि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है जो मैंने रीजंस बोले हैं, तो उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब होते हैं, वो उन पे एक ऐसी बात, एक ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज की जाती है इस औरत के साथ, तो सोचन है कहाँ पर मैं क्या इसका जवाब दूं. या कभी कभी मेरे पास ऐसी भी बातें होती है, मैंने वर्ड से भी कैपिटल समझाओ तो कि क्या हो रहा है मेरे साथ. आई हैड अ केस रिसेंटली कि उसमें क्या हुआ है कि एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को ऐसे ही बोला है कि पागल आप मेंटली हो, उसका कितना बैड रिपरकशन रहा है उस औरत पे, उसने कितना सोचा है इस वर्ड को कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा, एंड देन शी अप्रोच्ड टू आस्क सी, मतलब ये ऐसा बोला बिकॉज शी वाज इन्वॉल्वड इन दैट, शी गॉट मेंटली डिस्टर्ब्ड बाय दिस वर्ड, बाय दिस होगा ही इंसान अगर उसमें डिस्टर्बेंस. ये दूसरा ये है कि इकोनॉमिक वायलेंस जो कि मैंने बोला, हर एक को मेंटेनेंस की जरूरत है, औरत को भी अपने हिसाब से है तो वो भी चाहती है. अब कभी कभी ये होता है कि औरत को जब 10 रुपए भी नहीं मिलते हैं, यहाँ से घर को भी संभालो, यहाँ से अपने आप को भी, ये भी एक रीजन बन जाता है कि वो दे आर अप्रोचिंग. एंड ये भी एक आजकल का ये है कि ये एक इश्यू बन चुका है एक औरत के लिए कि मैं शुड मेंटेन नहीं करा मेरे, हाँ नो डाउट अब औरत को भी समझना है. मैंने पहले ही आपको बोला कि ट्राइबल इश्यूज लेके औरतें आती हैं, ऐसा नहीं है हमारा सेंटर हाँ यू जस्ट गो फॉर द कोर्ट नाउ, नहीं, वी मेक देम अंडरस्टैंड कि नहीं दिस इज द ट्राइबल इशू, दिस इज द पेटी इशू, यू हैव टू कोऑपरेट, है ना, मतलब यहाँ पे आप कोऑपरेट करो सुधर जाएंगे, या हम उनको वो स्पेस देते. लेकिन मेंटेनेंस तो उसका बेसिक फंडामेंटल राइट है, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज लाइफ, वेदर इट इज शेल्टर. इवन जो उसका बनाव श्रृंगार है उसको हम हंसी मजाक में लेते हैं, बट दैट इज ऑल्सो हर बर्थ राइट. यस, लेकिन अब ये देखना है कि औरत को भी ये देखना है कि मेरे हस्बैंड का जो मयार है, स्टैंडर्ड है, इनकम है, वो किस हद तक है. 100 से भी 5 हद कमाओ तो 100 रुपए दी, मैं ये भी तो देखना है ना, मतलब ओवरऑल में नहीं है हक. वही तो मैंने बोला ना कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है ये भी आजकल का इश्यू है, ये इससे भी औरतें जूझ रही है. अब जिसके पास होता है वो नहीं देता है तो औरत के लिए प्रॉब्लम ही है ना. हाँ, तो इसमें ये चीजें हैं हमारे यहाँ पे. डॉक्टर अनीता जी, व्हाट कॉजेस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली क्या होता है? बेसिकली इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने इसको इतना ब्रीड किया, जिन ग्राउंड्स ने, जिन फैक्टर्स ने इसको इतना ब्रीड किया, ये मुश्किल हो गया था कंट्रोल करना. बट अल्हम्दुलिल्लाह हैं. अब आप देख लीजिए, गर्ल्स आउटशाइन द बॉयज. अगर एजुकेशन की बात हम अपने सेक्टर में कर लें, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एक्सेस टुवर्ड्स एजुकेशन इज क्वाइट इक्वल.
बहुत सारी चीजें हमने ठीक भी करी हैं, लेकिन रीजंस बहुत सारे हैं. पहले तो हिस्टोरिकल रीजंस आप देख लीजिए, पेट्रियार्कल नोशन जो हमने डिफाइन किए, अर्ली बहस पे आ जाऊंगी, जो हमने डिफाइन किए आपका रोल ये है, यू नीड नॉट टू स्टडी, यू नीड नॉट टू स्पीक अप. Your tone needs to be always decent, dignified. But I feel that dignity is as important for a girl as for a boy. See, if you are some other gender, you are male, why you should depend your dignity on my shoulders? You need to be equally dignified. लेकिन रोल में हमने क्या बोला? She has to shoulder the dignity of all the sectors, whether he is father, brother, his husband, he's a good friend. You are a girl, you are a woman, you are a mother, you are a wife. You need to be dignified because all the people surrounding you have defined. और सारी इज्जत का बीड़ा उसके कंधे पर डाला जाता है. ये इज्जत है. इज्जत क्यों है, मर्द क्यों नहीं इज्जत? बिल्कुल, जबकि डिग्निटी का होना एक औरत के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक मर्द के लिए. सो दैट वी कैन से दैट वी आर डिग्निफाइड ह्यूमन बींग्स. ये पेट्रियार्कल नोशंस जो हमने डिफाइन किए हैं और औरत का रोल जो डिफाइन किया है वो एक मेन फैक्टर है. अब आएंगे अगर हट के थोड़ा सा रिलीजन पे, तो कोई भी रिलीजन दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन. कोई भी रिलीजन हो, यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट्स, दे प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वुमेन कीपिंग इन टू विद देयर पर्सनैलिटी. लेकिन हमारे इंटरप्रेटर्स जो हैं उन्होंने डिफाइन किया है उस तरह से जो उनको सही लगा, अपने हिसाब के अपनी पर्सनैलिटी को लेके जो डिफाइंड रोल सोसाइटी ने किए उनको उन टर्म्स में डिफाइन किया गया. अदरवाइज वी हैव एवरी लिबर्टी टू स्पीक, वी हैव एवरी लिबर्टी एकर एजुकेशन. वी नीड डॉक्टर्स. अगर हम डिग्निटी की बात करें, एक फीमेल डॉक्टर एक फीमेल पेशेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकती है, इवन मेल पेशेंट को भी कर सकती है, डायग्नोसिस कर सकती है. इवन मेल पेशेंट को भी, बिकॉज उसमें एक ममता होती है, एक ममता होती है, एक कनेक्ट होता है. लेकिन जब हमने इन वुमेन फोक को अपनी वो पेट्रियार्कल, अपना वो जो ठाट बाट होती है वो जिंदा रहे थ्रू आउट वर्ल्ड, अपना ईगो वो कयामत तक बरकरार रहे कि हम मर्द हैं, वो औरत है, कमजोर है. हाँ, कमजोर हो सकती है किसी एक फील्ड में. सपोज आप एक मर्द है, वो 100 kg वजन ले सकता है, लेकिन औरत 20 kg ले सकती है. दैट डजंट मीन कि वो ले ही नहीं सकती है. लेकिन एक फिजिक है, एक नेचुरलिटी होती है, एक नेचुरल लॉ होता है, उसी पे ऑपरेट होना चाहिए. लेकिन रिलीजियस ट्रांसक्रिप्ट्स को ऐसे इंटरप्रेट किया गया है कि हमें एजुकेशन से यूजुअली दूर रखा जाता है. औरतों को जो राइट्स होते हैं एक्सेसिबल उनको नहीं होते हैं. कहा जाता है ओके फाइन, आपने खामोश रहना है, चलिए जो सुखी रुखी मिलेगी वो उसमें गुजारा करना है, जो खाना हम देंगे, जो आप इल्म हासिल ना करें. जो ये इल्म हासिल जरूरी नहीं है उतना गर्ल के लिए जितना बॉय के लिए. इस चीज ने भी बहुत से मेनेसेस, सोशल मेनेसेस क्रिएट किए हुए हैं. और ये एक जड़ है जहाँ पे डाउरी सिस्टम है, सती सिस्टम है, जहाँ पे जो मैम ने कहा डोमेस्टिक वायलेंस है, जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट है. जब औरतों ने बाहर आना शुरू किया ये सारी प्रॉब्लम्स आ गई. क्यों आ गई? Because we never want to give her the share which otherwise she deserves as a human being. We need to treat the women first as human being. Don't favor her, but give her the due what she deserves. Otherwise, जो कुदरत ने हुकूक दिए हैं वो तो दीजिए. हमारे पास बिल्कुल कुरान शरीफ में एक पूरा ये पारा है जो डिस्कस करता है राइट्स ऑफ वुमेन. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लास्ट खुतबा दे रहे तब भी उन्होंने वुमेन का जिक्र किया. तो इंटरप्रेटेटर्स आज के ये हैं कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो फॉर एजुकेशन, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो. दे मेक देयर ओन इंटरप्रिटेशंस एंड these have resulted in the disadvantaged position of women. Women power hold नहीं कर सकती. What are the impacts of social injustice? अगर हम खवातीन की बात करेंगे, क्या पड़ता है इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्या पड़ता है? मैं ये मानूंगी कि सोशल इनजस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से, है ना. जब हम एक औरत को, जैसे मैम ने भी बोला है, जब हम औरत को सोशली इनजस्टिस में लेते हैं, करते हैं उस पर सोशल इनजस्टिस, तो वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब होती है. बिल्कुल. पहली बात ये है, जब हम इनजस्टिस में उसको लाते हैं तो पहला चीज जो होता है वो है दैट इज एंगर.
एंगर जब आई उससे तो पूरा घर का माहौल ही खराब हो गया है ना, बच्चे कहाँ, घर वाले इन लॉज कहाँ, या अगर मायका है तो वहां पे कहाँ, तो एंगर इज द नेगेटिव इमोशन, तो बहुत सारे इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात यह है कि जब उसको हम इनजस्टिस में पहले से ही लाते हैं, जब वो बॉर्न ही होती है, उसको एक अपने वर्ल्ड का एक नेगेटिव व्यू ही बन जाता है, शी बिकेम ऑल टुगेदर पैसिमिस्टिक, उसको कहीं पे फिर अच्छाई दिखती ही नहीं है, इट इज एंड इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी फिर बैड ही होते हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब हम रोज 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 ये इनजस्टिस में आती है और तो फ्रस्ट्रेशन इज देयर, यही जो मैंने बोला एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कितनी वो हमसे डिवाइड हो जाती है ना, स्ट्रेस में आ जाती है, तो उसके बाद फिर जो साइकोलॉजिकल उसके डिसऑर्डर्स में वो आ जाती है, तो वो तो सबसे बड़ी परेशानी। ये एक वसी टॉपिक है, लेकिन वक्त की कमी है, इंशाल्लाह फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे माशरे में खवातीन दुनिया के मयार पर उतरते उतरते कब्र में उतर जाती है। सो लेट अस एडुकेट for gender equity so that every person can thrive of their gender identity. That's all for today. Happy International Women's Day in advance to all of you. Be confident, be strong, खुश रहिए, सलामत रहिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज and bye bye.